Good morning, students. This is Muneesh Gupta, teacher, Boys High Secondary School, Udhampur. I am taking chemistry, class 10th. And first of all, let us understand what is chemistry before actually taking up the syllabus. Look at the board. Chemistry, it is that branch of science which deals with the study of matter, that is properties of matter, composition of matter, and the various changes it undergoes. Let us understand the meaning of this. In the class 9th, you have already understood what is matter. In simple terms, we say that anything which occupies space and possesses some mass, that is called as matter. So when we study properties of matter, when we study composition of matter, when we study structure of matter, when we study the various physical and the chemical changes that the matter undergoes, that all is included in chemistry. Let us take an example to understand what is chemistry. Let us take the case of diamond. You know what is diamond? It is an allotrope of carbon. First of all, what is the composition of this diamond, which is a matter? We know it is made of carbon. तो जब हम ये स्टडी करेंगे कि हमारे पास डायमंड है जो एक मैटर है, उसका क्या कंपोजिशन है, द आंसर इज डायमंड इज मेड ऑफ कार्बन. इसका मतलब हमने डायमंड मैटर का कंपोजिशन स्टडी किया है. देन लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. You may be knowing that in a diamond, each carbon atom is connected to 4 other carbon atoms. This is the structure of the diamond. तो इस एग्जाम्पल में हम डायमंड का स्ट्रक्चर के बारे में ब्रीफ में बात करें हैं, हम डायमंड की कंपोजिशन के बारे में बात करें हैं. इसी तरह से जब हम डायमंड की जो एक मैटर है प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे कि डायमंड का बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट है, डायमंड का बहुत हाई जो है डेंसिटी है, डायमंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस है सभी नेचुरल सब्सटेंसेस में से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है. इस तरह से जब हम किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, केमिकल कंपोजिशन स्टडी करेंगे और ये भी स्टडी करेंगे कि हमारी सराउंडिंग में वो मैटर कौन कौन सी फिजिकल और केमिकल चेंजेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री. तो स्टूडेंट्स, वी नाउ कैन कंक्लूड दैट कि व्हेन वी स्टडी मैटर, चाहे हम मैटर का कुछ भी एक्सपेक्ट स्टडी क्यों ना करें, दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री. तो इन शॉर्ट आई कैन कंक्लूड दैट द स्टडी ऑफ मैटर, वेदर यू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या हम मैटर की कंपोजिशन स्टडी करें, मैटर का स्ट्रक्चर स्टडी करें, दैट इज कॉल्ड एज केमिस्ट्री. नाउ इन क्लास 10th there are 5 chapters which are included in chemistry. These 5 chapters are, look at the board. The first chapter is
chemical reactions and equations। तो स्टूडेंट पहला चैप्टर हमारा केमिस्ट्री में कौन सा है? केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। सेकंड चैप्टर जो आप स्टडी करेंगे दैट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एक बार फिर से, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड चैप्टर जो आप स्टडी करेंगे एंड दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज कार्बन कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट कार्बन कंपाउंड 10th क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कार्बन कंपाउंड्स क्लास 11th और क्लास 12th में भी इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड हैं। उसके बाद हम स्टडी करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। और लास्ट चैप्टर जो आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री का दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सो व्हाट आर द 5 chapters which are included in the chemistry of class 10th? So again, chemical reactions and equations, periodic classification of elements, carbon compounds, acids, bases and salts, and 5th one is metals and non-metals. I hope you all have noted down the various chapters which are included in the chemistry of class 10th. Now let us start the first chapter of chemistry, and that is chemical reactions and equations. Before starting this chapter, we must understand that there are 2 types of changes that may occur in the matter. I repeat my words. There are 2 types of changes that may occur in the matter. These 2 types of changes are physical changes and chemical changes. जब तक हम physical और particularly chemical changes understand नहीं कर लेते, तब तक we will be failing to understand what is a chemical reaction. So, what is a physical change? First of all, look at the board. Physical change is a process in which the nature and the original identity of a substance does not change. I repeat, जो आपको नोट भी करना है, it is a process in which the nature and the original identity of a substance does not change, and there is no formation of a new substance. New substance नहीं बनता है। थोड़ी देर में मैं एग्जाम्पल लूंगा। पहले ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने बोर्ड पे लिखी हैं, आपको भी लिखनी होंगी। मेल्टिंग ऑफ आइस एक बड़ा ही कॉमन, बहुत ही कॉमन फिजिकल प्रोसेस है। एवापोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर का पानी में डिसॉल्व होना एक्सेट्रा, दीज आर फ्यू वेरी कॉमन फिजिकल चेंजेस। स्टूडेंट्स, थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं आखिर ये फिजिकल चेंज एक्चुअली है क्या। ये आप क्लास 9th में भी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। एक्चुअली ये कुछ टेम्परेरी चेंजेस होती हैं। इन चेंजेस के अंदर सब्सटेंस का जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें कोई चेंज नहीं आता है। सब्सटेंस का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी होता है उसमें भी कोई चेंज नहीं आता है। हाँ, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आता है। कोई एग्जाम्पल लेना पड़ेगी। जैसे हमने बोर्ड पे लिखा है मेल्टिंग ऑफ आइस। इफ यू टेक अ पीस ऑफ आइस एंड स्टडी इट्स केमिकल कंपोजिशन, आइस इज मेड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. Its formula is H2O.
इट इज अ सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। और जब हम आइस लेंगे और कुछ देर में जब वो आइस मेल्ट करेगा और वाटर बनेगा, तो वाटर का भी केमिकल कंपोजिशन सेम है जो केमिकल कंपोजिशन आइस का है। वाटर का भी फार्मूला H2O है, वाटर भी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना है। तो मतलब जब आइस मेल्ट होके वाटर में चेंज होगी, उस समय किसी भी किस्म का चेंज इन केमिकल कंपोजिशन अकर नहीं कर रहा है, ओरिजिनल आइडेंटिटी में चेंज नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एक फिजिकल चेंज है। और फिजिकल चेंजेस, मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंजेस को इजीली रिवर्स भी किया जा सकता है। अगर आपके पास वाटर है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाए, तो यही वाटर वापस आइस में फ्रीज कर जाएगा। तो फिर क्या हुई ये फिजिकल चेंजेस? दोस चेंजेस जिनमें एक सब्सटेंस अपना ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज ना करे, दोस चेंजेस जिनमें सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज ना आए, ऐसी चेंजेस जिनमें सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंज ना आए। हाँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ सकता है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं आएगा, केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज नहीं आएगा, और कोई भी न्यू डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा। सच काइंड ऑफ चेंजेस आर एक्चुअली कॉल्ड एज द फिजिकल changes, and most of the physical changes are reversible and they are temporary. Some other examples are evaporation of water. You know, when water is evaporated, it changes into the water vapors, और वो water vapors जो water evaporate करा, that is H2O, जो vapors बन गए और एटमॉस्फेयर में चले गए, वो भी H2O हैं। केमिकल कंपोजिशन में कोई चीज नहीं आया है। और यही वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयर में जब प्रेसिपिटेट होंगे तो वापस रेन बन जाएगी और वापस पानी हमारे अर्थ की वाटर बॉडीज में लौट आएगा। इट मीन्स दैट ये भी एक टेम्परेरी चेंज है। यहाँ पे भी केमिकल कंपोजिशन का कोई चेंज नहीं हुआ है। सच काइंड ऑफ चेंजेस जिसमें सब्सटेंस का ओरिजिनल आइडेंटिटी सेम रहा, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द फिजिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस के बाद हम थोड़ा सा केमिकल चेंज की तरफ चल पड़ते हैं। फिजिकल चेंज का एग्जैक्ट अपोजिट होता है केमिकल चेंज। पहले बोर्ड पे देख लेते हैं हमने फिजिकल चेंज के बारे में क्या लिखा है। सो लुक एट दी बोर्ड। केमिकल चेंज, नॉट फिजिकल चेंज, नॉट केमिकल चेंज। Chemical change, it is a process in which the nature and the original identity of a substance changes and a new substance is always formed. I repeat, what is a chemical change? It is a process in which the nature and the original identity of a substance changes and a new substance is always formed. Among the various popular examples of chemical changes, one of them is rusting of iron. Let us understand how rusting of iron is a chemical change. Just understand iron. What is iron? You know, iron is a metal, and iron has an atomic symbol Fe. When iron is exposed to the moist air, a chemical compound is formed which is hydrated ferric oxide. So what happens? क्या हुआ इस रस्टिंग में? रस्टिंग की प्रोसेस में स्लोली आयरन जो होता है वो आयरन नहीं रहता है। आयरन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नेम के कंपाउंड में
चेंज होता जाता है। इसका मतलब कि आयरन अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी लूज कर रहा है। बिफोर रस्टिंग मेटल आयरन थी हमारे पास, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम मॉइस्ट एयर में एक्सपोजर हुआ तो वो स्लोली आयरन के एटम्स फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड नेम के कंपाउंड में चेंज होते जाते हैं। इसका मतलब इस एग्जांपल में क्या हुआ कि एक जो सब्सटेंस थी मेरी एग्जांपल में आयरन, वो स्लोली किसी न्यू सब्सटेंस में, किसी न्यू कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो इसका मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस हुआ रस्टिंग ऑफ आयरन जिसमें एक सब्सटेंस अपना केमिकल कंपोजिशन लूज कर रहा है, एक सब्सटेंस जो है वो टोटली न्यू डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। सच काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस एंड रिमेंबर मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंजेस आर irreversible changes and they are permanent changes. Some other examples are cooking of food. You know, when we have food in the raw form. जब हमारे पास रॉ स्टेट में, नॉन एडिबल स्टेट में जब हमारे पास फूड होगा और जब हम उस फूड का कुकिंग करेंगे तो कुकिंग करने पर फूड की प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है। हम फूड को नॉन एडिबल फॉर्म से एडिबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब हमने राइस लिए, राइस को जब हमने कुकर में डाला, उसके बाद जब हमने राइस को कुक किया, जब राइस कुक हो गए तो राइस की प्रॉपर्टीज में चेंज आ गया। कच्चे चावल जो थे अब वो पक गए और हमारे पास ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है कि हम कुक्ड राइस को रॉ राइस में वापस कन्वर्ट कर सके। मीनिंग एक परमानेंट चेंज हुआ है एंड सच परमानेंट इरिवर्सिबल चेंजेस आर कॉल्ड एज केमिकल चेंजेस। सो रस्टिंग ऑफ आयरन, बोर्ड पे देखिएगा, रस्टिंग ऑफ आयरन, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में जब फूड का डाइजेशन होता है, फूड का फॉर्म टोटली बदल जाता है, फूड की प्रॉपर्टीज में टोटल चेंज आ जाता है। दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। जब कोई भी सब्सटेंस, कोई भी फ्यूल बर्न करता है, वो न्यू सब्सटेंसेस और वेरियस अदर गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है, सेवरल न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स थी केमिकल चेंज। तो मैं होप करता हूं कि जो मैंने आपको थोड़ा फास्टली पढ़ाया है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा है क्या है फिजिकल चेंज, क्या है केमिकल चेंज, स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत आपको इसका आइडिया लगना चाहिए। तो आगे जाने से पहले मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि मैंने आपको अभी क्या समझाया है। When you study matter, remember this is chemistry. प्रॉपर्टी स्टडी करें मैटर की, कंपोजिशन स्टडी करें मैटर की, स्ट्रक्चर स्टडी करें मैटर का, मैटर कौन कौन सी चेंजेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट ऑल इज केमिस्ट्री। मैटर जब किसी ऐसी चेंज में पार्टिसिपेट करे, ऐसी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करे जिसमें मैटर की ओरिजिनल आइडेंटिटी में कोई चेंज ना आए, दैट इज अ फिजिकल चेंज। लेकिन मैटर अगर कोई ऐसी चेंज में पार्टिसिपेट करे जिस चेंज में क्या हो जाए कि मैटर की ओरिजिनल आइडेंटिटी में ही कोई चेंज आ गया, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ केमिकल चेंज। तो इस तरह आगे जाने से पहले थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि व्हाट इज अ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं स्टूडेंट्स, आपको अपने घर से थोड़ा सा मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आपने 5 एग्जाम्पल्स पिकअप करनी है फिजिकल चेंज की और 5 एग्जाम्पल्स पिकअप करनी है केमिकल चेंज की, जो आप देखेंगे कि आपके आसपास की सराउंडिंग में हो रही होंगी। तो ये हमारा फर्स्ट
मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्चुअली स्टडी करूंगा व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू।